Hello students, Jnacharya Sri Ajramarji Vidyadham, Standard 4, Chapter 16, A Busy Month Part 2, Subject Environment. हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. ओपन योर टेक्स्ट बुक 122 पेज पे. Dove also make their nests like this. Often they make nests in old or deserted building. The barbet or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuk 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 call. It makes its nests in a hole in a tree trunk, and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a vase. It lays its egg in the fold of the leaf that it has made, that is its nest. यहाँ पे जो कभी कभी जो डेजर्टेड मतलब कि कोई आना जाना नहीं होता है, ऐसी उजड़ जगह पे ये जो टेलर बर्ड है वो अपना माला बनाता है. वो उसकी आवाज़ टुक 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 हमें समर में ज़्यादातर सुनाई देती है. वो दो लीफ को सी के और उसको फोल्ड करके उसके अंदर एग देता है. राइट, तो ऐसा उसका माला होता है. फिर नेक्स्ट क्या है, ये है सनबर्ड. राइट, तो ये जो सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट hangs from the branch of a small tree or a bush. The same evening, we saw a sunbird's net. Can you guess what its net is made of? वो माला कैसे बनाता है जो सनबर्ड होता है? Can you guess? The nest has hair, grass, thin twig, dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloths, rugs, and even spiders' cobwebs. ये इसमें से माला बनाता है. फिर नीचे है weaver bird. When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. छोटा सा होल होता है, उसके नज़दीक उसके चिक उसके बच्चे होते हैं जो दिखाई देते हैं. It was waiting for its mother to bring some food. वो अपनी माँ का जो राह देखते हैं, वेट करते हैं खाने के लिए कि कुछ लाए. What else can it do? Just eat and sleep. वो खा के फिर सो जाते हैं. अभी ग्रीन कलर के बॉक्स में क्या दिया हुआ है? Do you know about the river birds? The male weaver bird makes beautifully woven nests. वो ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर माला है weaver bird का. Right, the female looks at the old nets and choose the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. वो फीमेल बर्ड है, वो कहती है कि उसको कौन सी जगह पे कंफर्ट रहेगा. राइट, नेक्स्ट पेज. All birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is only the first step. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much efforts. यहाँ पे सब जो बर्ड्स है वो ये दिनों में बहुत व्यस्त रहते हैं. वो उसका माला बनाने का और इंडा देने का बहुत टफ टास्क होता है. राइट, और उसके बच्चे को उछेरने का मतलब कि उसको ग्रो अप करने का भी बहुत
मुश्किल होता है। Birds have many enemies, human being and other animals too. इसके बहुत सारे शत्रु होते हैं, मनुष्य और प्राणी भी उसके दुश्मन होते हैं। Crowd crows and squirrels, its cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. Steal the eggs मतलब कि उसको ले ले, चोरी कर ले। Many times they even breaks the net. कभी कभी तो उसका माला भी तोड़ देते हैं। To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the egg, and raise the chicks safely. All these are tests for everybody. ये सब उसकी एक जर्नी है, वो उसके लिए टेस्ट है। However, the birds still sings with joy and spread their wings and fly freely. So that is all for now. Salam. Blessing for your गुज्जू भाई। ये सब देख के गुज्जू भाई को सलाम करने की आवश्यकता हुई कि उसने सलाम किया। इसके सब के लिए गिजू भाई का आशीर्वाद। How many years ago did Guju Bhai write the letter? Guju Bhai wrote this letter 84 years ago. ये जो लेटर लिखा है वो 84 ईयर पहले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस लेटर टॉक्स अबाउट डिफरेंट बर्ड्स. हाउ मेनी ऑफ these birds have you seen? From the birds named in this letter, I have seen pigeons, sparrow, crow, tilbert, etc. Third question is, how many others birds have you seen? Which ones? I have seen many other birds apart from the ones mentioned above. For example, sparrow, duck, kites, parrots, etc. Fourth is, have you seen a bird's nest? Where did you see it? Yes, I have seen bird's nests. There is a big tree near the gate of our society. बच्चों, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आप स्क्रीनशॉट निकाल के पेंसिल से ज़रूर से लिख लेना। ओके, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड? कैन यू सो? यहाँ पे मैंने अ पीकॉक लिखा है, बट आपका फेवरेट बर्ड मतलब कि ये तो एक कोयडो यहाँ पे है, बट यहाँ पे ये आप अपने ओन से ही आंसर देना है, राइट? कि आपका कौन सा है बर्ड फेवरेट। फिर विच इज दिस बर्ड? तो अ क्रोन ऑन हेड एंड कोइंस ऑन द टेल। सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल। क्लू दी हुई है, इट इज अवर नेशनल बर्ड, तो अ पीकॉक आएगा। If there is nets inside or around your house, look at it carefully. Remember, do not go to the near the nest. तो उसके नज़दीक नहीं जाना है, and do not touch it. उसको टच नहीं करना है। If you do so, then the birds will not come to the nest again. माला बनाने के लिए फिर से नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर द सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द नेस्ट मेड? द नेस्ट इज मेड ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। सेकेंड है, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ? द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राई बिट्स ऑफ हाई a twig and bits of wire. Next one, is the nest ready or are the birds still making it? The nest is ready. Can you recognize which birds have made the nest? Yes, a crow has made the nest. What things does the birds bring to the nest? The crow brings small insect and worms
to feed its chicks. It also brings pieces of roti and grains. Is there any bird sitting in the nest? Yes, there is a bird sitting in the nest. Next one, do you think there are any eggs in the nest? Answer is no. I do not think there are any eggs in the nest. You are Can you hear any sound like chee chee from the nest? Yes, I can hear some sound like chee chee from the nest. Next one, if there are chicks in the nest, what do the parent bird bring for them to eat? The parent birds bring grains, pieces of red roti, and small insects and worms for the chicks to eat. Next one, how many times in 1 hour do the birds come to the nest? The maid, the male and the female crow come to two to three times to the nest in 1 hour. एक घंटे में 2 से 3 बार आके जाते हैं. Next one, after how many days did the chicks leave the nest? The chicks leave the nest and fly away after about 1 month. 1 month के अंदर वो छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं. Make a picture of the nest in your notebook. यहाँ पे आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक में एक नेस्ट ड्रॉ करना है, राइट? You have seen how birds use many different things to make their nest. यहाँ पे आप जो बर्ड ड्रॉ करो बच्चों, राइट, तो वो फ्रंट पेज पे सबसे पहले ऊपर हम नेम लिखो ना नोटबुक में ऊपर, फिर वही पेज में फर्स्ट पेज में आपको ड्रॉ कर लेना है और कलर कर देना है. और नीचे कौन से बर्ड का ये जो नेस्ट है वो भी आपको लिखना है, राइट? समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? यस, वेरी गुड. Birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks grown, they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn to walk and talk. After they leave their nest, different kinds of birds live at different places. Some on tree, some near or in water, and some on land. Other animals is also live at different places, on land, under the ground, and in water and on trees. यहाँ पे पाउस दिए हुए, बर्ड्स पाउस, डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स. सबकी ज़रूरियात अलग अलग होती है, राइट? तो क्या यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट है टू स्विमिंग करने के लिए ये दिए हुए हैं. फिर नेक्स्ट है टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, पकड़ने के लिए ये सेकेंड वाला है, वो पकड़ने के लिए है. फिर टू कैच द प्रे, यहाँ पे व्हाट इट हर्न, यहाँ पे जो उसका जो खाने की कुछ चीज़ है तो वो पकड़ने के लिए उसका ये पाउज यूज़ किया जाता है. फिर यहाँ पे नीचे फोर्थ वाला टू वॉक ऑन द लैंड पे चलने के लिए ऐसे पाउज है. और द क्लाइंब द ट्री, झाड़ को पर चढ़ने के लिए ऐसे है. तो यहाँ पे सबके पाउज डिफरेंट है. वैसे ही यहाँ पे सबकी बिक्स जो है वो भी डिफरेंट है क्योंकि उसका यूज़ भी डिफरेंट होता है, राइट? तो टू टीयर एंड ईट मीट, यहाँ पे जो मीट होता है उसको फाड़ने के लिए और खाने के लिए क्रुक बिक यहाँ पे फर्स्ट.
फिर टू मेक होल्स तो वुड एंड ट्री ट्रंक, यहाँ पे देखो ये जो है होती है वो यहाँ पे लकड़ी में काना करने के लिए होती है। फिर ये थर्ड है टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, उस रस चूसने के लिए होती है। फिर यहाँ पे ऐसी बीके टू फाइंड इंसेक्ट एंड मड एंड सेलो वाटर, यहाँ पे पानी में से छोटे छोटे जीव जंतु खाने के लिए। फिर ये है टू ब्रेक एंड क्रश सीड, यहाँ पे बीज और तोड़ने के लिए होते हैं। और ये है कट एंड इट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, यहाँ पे बहुत सारे जो फूड है वो खाने के लिए ऐसी बीक्स होती है। राइट, तो यहाँ पे हमने अलग अलग बिट्स भी देखी। अब आगे एनिमल्स टीथ, अभी हम उसके दांत को देखेंगे। यस, यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट हम देखेंगे काउ, तो cows have short front teeth for snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. यहाँ पे आगे के दांत जो है काऊ के लिए वो खाने के लिए कट करने के लिए होते हैं। राइट, फिर कैट, तो कैट हैज शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। राइट, फिर नेक्स्ट है स्नैक, स्नैक हैव शार्प covered teeth but they do not chewed their prey. उसका जो खुराक होता है वो कट करके नहीं खाता है, सीधा अंदर सेलो गल जाता है पूरा। फिर स्क्विरल, द स्क्विरल्स फ्रंट टीथ keep growing throughout their life. They have to keep gnawing on things to keep their teeth from becoming too long. यहाँ पे उसके जो स्क्विरल के आगे के दांत है ना वो बढ़ते ही रहते हैं, और उसके जो रैट जैसा होता है उसके आगे वाले दांत है वो सब कोतरने के लिए अच्छा उसको सपोर्ट करते हैं। और नीचे ये आपके लिए है, आपको खुद अपने ओन से करना है। योर एज, आपको अपनी एज मैंने टेंटेटिवली यहाँ पे लिखी है, आप अपने ओन से भी लिख सकते हो। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, आपके दांत में कितने दांत है। हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन, यहाँ पे कितने साल से अपने दांत गिरने चालू हो गए हैं। राइट, फिर यहाँ पे भी आपको अपने ओन से लिखना है। हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव। राइट, तो ये आप अपने ओन से लिख लोगे। बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अलग अलग हमने पाव से बिग टीथ ये सब के बारे में हमने अलग अलग इंफॉर्मेशन ली। अभी जो बुक में लिखने का है वो आप स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लेंगे। राइट, आपको ये लेसन समझ में आ गया है। राइट, अभी नेक्स्ट लेसन में हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू।